آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ہوش نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں نوع انسان کو، ہوش نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا، وہ ہندی وہ خراسانی وہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا۔ کیوں؟ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے منزل اس کو آسمانوں میں۔ باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، ظلم و ظلم ہے ابھرے گا تو دب جائے گا، خون وہ خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ معزز سامعین کرام، شمع رسالت کے پروانوں، باغدائے توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، غوث اعظم کے دیوانوں، خواجہ پاک کو چاہنے والوں، اولیاء کرام کو ماننے والوں، علماء ملت اور میرے ملت کے نوجوانوں، پردہ نشی ماؤ بہنوں، آؤ سب سے پہلے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج و عقیدت پیش کریں، جن کی نگاہیں اڑ جاتی ہے تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے۔ آؤ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جو کرۂ ارض پر کھڑے ہو کر انگلیوں کا اشارہ فرما دیتے ہی ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آتا ہے۔ آؤ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جن کو رب کائنات نے کہیں مدثر کہہ کے پکارا، کہیں مزمل کہہ کے پکارا، کہیں البصیر النذیر کہہ کے پکارا، تو کہیں سراج منیر کہہ کے پکارا، تو کہیں یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا۔ آؤ ہم اور آپ سب مل کر جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم منبع العلم الحلم الحکم والہ وصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ منّا علینا ربنا اذ بعث محمدا، منّا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ اید نبی احمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صل علیہ سرمدا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں نہ تخت و تاج سیم و غیر کی بات کرو۔ حضرات توجہ چاہوں گا حضرات، نہ تخت و تاج سیم و گھر کی بات کرو، خیر جو چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حضرات خطبات مسنونہ کے بعد بڑے ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج جو یہ محفل منعقد کی گئی ہے ایصال ثواب کی محفل ہے، اور اس محفل میں میں نے قرآن المجید والفرقان الحمید سے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا دار و مدار اتباع رسول سے ہے، جن کا دار و مدار سنت رسول سے ہے، جس کے اندر سنت نہیں وہ رسول کا نہیں،
جس کے اندر اتباع رسول نہیں وہ رسول کی امت میں سے نہیں۔ آؤ دوستو، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنی بریلی کے دھرتی سے پکار اٹھتے ہیں کہ عظمت محمد سے، عظمت مصطفیٰ سے قلب جس کا خالی ہے، لاکھوں بھر سجدے بھی اس کے کام آ نہیں سکتے، لاکھوں بھر سجدے بھی کام آ نہیں سکتے۔ ارے توجہ چاہوں گا، ادھر دیکھیے کہ لاکھوں بھر سجدے بھی کام آ نہیں سکتے عظمت مصطفیٰ سے قلب جس کا خالی ہے۔ میرے دوستو ایک اور شعر توجہ چاہوں گا حضرات، ایک اور توجہ چاہوں گا، ذرا ادھر دیکھیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنی بریلی کے دھرتی سے اپنے سینہ کو چیرتا ہوا عشق و محبت کی ڈالیاں نچھاور کرتا ہوا پکار اٹھتے ہیں کہ ذکر پھیکا ہے کہ جب تک نہ مذکور ہو حسن نمکینے والا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ تو حضرات دیکھیے، میرے طرف دیکھیے، اپنے ذہن کو میرے طرف لگائیے، اپنے دل و دماغ کو میری تقریر کے عنوان پر لگائیے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے محبوب سے فرما رہا ہے، میرے پروردگار فرما رہا ہے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کوئی اور راستہ نہیں، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے تابعداری کرو، میرے دروازے پہ آؤ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی اتباع کروں گا، آپ کی تابعداری کروں گا، آپ کے دروازے پہ جاؤں گا تو کیا ملے گا؟ بولے بہت انعام ملے گا، یحببکم اللہ۔ ارے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ پھر میرے ایمان نے للکا کر کہا یتیق، اللہ تو قہار ہے، اللہ تو جبار ہے، لیکن جب تم مدینے والے نبی کی اتباع کرو گے، جب تم مدینے والے نبی کی تابعداری کرو گے، جب تم مدینے والے نبی کے دروازے پہ جاؤ گے تو اس وقت نہ اللہ قہار رہے گا نہ جبار رہے گا، بلکہ واللہ غفور رحیم، اللہ تم پر مہربان ہو جائے گا، تمہارے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیے ادھر دیکھیے، اپنے ذہن کو لگائیے میرے طرف کو اور دل و دماغ سے سماعت کیجئے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اتباع رسول، سنت رسول کا پابند ہونا، عظمت مصطفیٰ سے دل لگانا۔ ارے سنت کو ایسی پابند بنا لو، ایسی بنا لو اٹھنا بھی سنت کا طریقہ ہو جائے، چلنا بھی سنت کا طریقہ ہو جائے، بیٹھنا بھی سنتی طریقہ ہو جائے، کھانا بھی سنتی طریقہ ہو جائے، پینا بھی سنتی طریقہ ہو جائے، جلسہ بھی سنتی طریقے سے ہو جائے، اور دنیا کا ہر کام سنتی ہو جائے۔ دیکھیے ادھر دیکھیے، میرے طرف توجہ کیجئے حضرات، میں ایک ایسا واقعہ آپ کو بتاؤں گا، ایک ویسا واقعہ بتاؤں گا جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ مومن ہونے کا فخر محسوس کرو گے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی امت میں سے ہوں اور میرا نصیب اتنا چمکدار ہے اور مجھے پتا بھی نہیں، میرے پاس تو سکہ تھا، میرے پاس تو سونے کا سکہ تھا، میں نے کھوٹا سکہ سمجھ کر میں نے پابند نہیں کیا۔ آئیے میں ایک ایسا واقعہ آپ کو سناؤں جسے سننے کے بعد آپ کو دل و دماغ تازہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی روح میں طاقت آ جائے گی، آپ کا جذب و جہاد آپ کو اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ آئیے میں واقعہ سناؤں، میرے پیارے رسول مدینے میں جب میرے پیارے رسول کی اتباع کرنے والے وہ شخص جس کا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا توجہ دیجئے گا، دل و دماغ کو اس طرح لگائیے گا۔ آئیے سنیے، وہ عائش قرنی ہے جس نے اپنے نبی کی اتباع کی، جس نے نبی کے سنت پر پابند
की, जिसने नबी से मोहब्बत की, जिसने नबी को अपने जान से ज्यादा, अपने जान और माल से ज्यादा मोहब्बत की, लेकिन वो हयातुल नबी को ना देख पाए, वो सहाबी रसूल ना बन पाए। देखो ये वाकया सुन लो, मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, ऐ उमर, ऐ अबू बकर, ऐ उस्मान, ऐ मेरे प्यारो सुनो, ऐ मेरे प्यारो सुनो सुनो। बोले क्या? ये मेरी जुब्बा है, इसका हकदार तुम नहीं हो। ऐ उमर, इसका हकदार तुम नहीं हो। ऐ उस्मान, तुम हक नहीं हो। ऐ अबू बकर, इसका हकदार तुम नहीं हो। बोले आका, इसका हकदार कौन है? ये जुब्बे का हकदार कौन है? बोले आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर सुनो, ऐ उमर सुनो, ऐ उस्मान सुनो, अगर तुम में से दौर में से किसी को भी हजरत वैस कुरनी मिल जाए तो उसे मेरे ये जुब्बा दे देना और कह देना तुम्हारे आका ने तुम्हारे लिए ये तोहफे में भेजा है, और आखिरत में क़यामत के दिन हश्र के मैदान में तुम्हारे लिए मुंतज़िर होगा तुम्हारे आका। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। हजरत आइए मैं आपको वो वाकया सुनाऊं, जब हजरत उहद के मैदान में, जब जंगे वहद में मेरे प्यारे मुस्तफा के दंदन मुबारक शहीद हो गए, मेरे नबी मुस्तफा के दंदन मुबारक शहीद हो गए। प्यारे मुस्तफा के दंदन मुबारक शहीद होने के बाद ये बात हवा में उड़ती हुई, फजाओं में गूंजती हुई, चारों तरफ फैलती हुई हजरत वैस कुरनी के कानों में पहुंची है कि वैस कुरनी, तू जिसे आका मानता है, तू जिसे पैगंबर मानता है, तो जिसको दिल में बैठा के रखता है, वैस कुरनी, आज वो तेरे आका का दंदन मुबारक शहीद हो चुका है। वैस कुरनी ने कहा, ऐ वैस कुरनी, क्या सोच रहा है? तेरे आका, तेरे मुस्तफा का दंदन मुबारक शहीद हो गया और तू अपने दांत लेकर घूम रहा है, इन दांतों को कैसे लेके घूम रहा है? हजरत वैस कुरनी अभी आका को देखा नहीं, अभी आका की मुलाकात की भी नहीं, सिर्फ सुनने के बाद जो मुस्तफा आए हैं, पैगंबर आए हैं, आखिर नबी आए हैं, दिल में ऐसी मोहब्बत बसाए हुए हैं, नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में, नबी की इत्तिबा करते हुए, मेरे नबी की ताबेदारी करते हुए अपने दंदन मुबारक को तोड़ दिया। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। आइए हजरत, ये सिर्फ इतना ही नहीं, हजरत वैस कुरनी एक दांत को नहीं तोड़ा, मेरे नबी मुस्तफा की दंदन मुबारक शहीद हो गए। अब हजरत वैस कुरनी ने सोचा शायद दूसरी दांत शहीद हुआ होगा, तो उसने दूसरे दांत को भी तोड़ दिया, लेकिन शक व शुबा अपने दिल में ही रह गया। जब शक व शुबे के ख्याल में वो इस वैस कुरनी फिर तीसरे दांत को भी तोड़ दिया, चौथे दांत को भी तोड़ दिया, फिर सोचने लगा शायद ऊपर वाले दांत नहीं टूटे होंगे, ऊपर वाले दांत मेरे नबी के शहीद नहीं हुए होंगे। हजरत वैस कुरनी एक नहीं, दो नहीं, अपने मुंह के जबड़े के 32 दांतों को तोड़ कर रख दिया अपनी नबी की मोहब्बत में। ये होती है इत्तिबा, ये होती है ताबेदारी। आइए इत्तिबा कीजिए, नबी मुस्तफा पैगंबर की ताबेदारी कीजिए, क्योंकि कल हश्र का मैदान बर्पा होगा, कल आखिरत का मैदान बर्पा होगा। सब लोग नफ्सी नफ्सी का आलम में होंगे, चारों तरफ नफ्सी नफ्सी फैला होगा। क्या करे क्या करे? मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, ऐ मेरे प्यारो, ऐ मेरे प्यारो सुनो, ऐ मेरे प्यारो सुनो। बोले कल कयामत का दिन हश्र के मैदान में इतने करोड़ों खरबों न जाने अनगिनत इंसानों के बीच में तुम अपने पैगंबर को ढूंढने की जरूरत नहीं। बोले आका फिर आपको कहाँ मिल जाएगा? बोले मुझे पुल सिरात में पाना, मैं वहां मिलूंगा। फिर बोले कि आका अगर वहां ना मिले तो? बोले वहां ना मिलूं तो मीजान के पास जाना, जहां नेकी बदी तोली जाएगी वहां भी मिल जाऊंगा। बोले आका अगर वहां ना मिले तो? बोले वहां ना मिले तो तुम पुल सिरात के पास पहुंच जाना, मैं वहां मिल जाऊंगा। हजरत बोले आका ये कयामत के दिन हश्र के मैदान में भागम भाग कैसा? कभी देखूं तो पुल सिरात में खड़े होंगे, कभी बोल रहे हैं मीजान के पास खड़े होंगे, तो कभी कह रहे हैं कि आप हौजे कौसर पिलाएंगे, कि पुल सिरात में या तो मीजान में। कहां होंगे आप? आका ने फरमाया सुनो, जब मेरे गुनहगार उम्मती पुल सिरात पार करता होगा उसके दिल में डर होगा, क्योंकि उसका हमसाया कोई नहीं होगा, उसका साथ संग कोई नहीं होगा। तो मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया जब पुल सिरात के पास में खड़ा होऊंगा तो मेरे गुनहगार उम्मती जब पार होगा और जब मुझे देखेगा तो मेरे गुनहगार उम्मती के दिल में वो हिम्मत पैदा हो जाएगा कि मुझे अब किसी बात का डर नहीं, किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे आका, मेरे मुस्तफा मेरे नजरों के सामने खड़े हैं। अगर मैं गिर जाऊं तो
मुस्तफा पकड़ लेंगे, ये हिम्मत पैदा हो जाएगी और मेरे गुनहगार उम्मती पूल सिरात पार करके चले जाएंगे। देखिए इधर देखिए, अपने दिलो दिमाग को मेरे तरफ लगाइए। मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं जब कोई मेरे गुनहगार उम्मती अपनी नेकी बदी को लेकर टेंशन में रहेगा, चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा, हैरान रहेगा, अब क्या करे क्या करे। जब नेकी बदी वजन तराजू में मापी जाएगी तो मैं वहां पर पहुंच के मैं अपनी गुनहगार उम्मती के नेकी के पलरे में एक कागज के पर्ची रख दूंगा ताकि उसके नेकी भारी हो जाए और वो जन्नती हो जाए। कह दो मतलब के सुनो। आका ने फरमाया कि सुनो ऐ मेरे प्यारे सुनो, मैं हौजे कौसर में क्या करूंगा। बोले क्या करोगे आके, क्या करोगे आका, वो हौजे कौसर में क्या करोगे। बोले सुन लो, क़यामत का दिन होगा, हश्र का मैदान बर्पा होगा। देखिए तवज्जो चाहूंगा, जब हश्र का मैदान बर्पा होगा, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 25,000 वर्ष तक जब वो इंसान भागा भागा फिरता रहेगा, इस कोने से उस कोना, कहीं नफसी नफसी का आलम होगा, भागता रहेगा। सूरज एक नेज़े के ऊपर होगा, जमीन तपती, जमीन पर पैर रखना मुश्किल पड़ जाएगा। तभी वो इंसान एक नहीं दो नहीं 25,000 वर्ष जब वो तड़प तड़प कर मेरे पास आएगा, मैं उसको देखूंगा, वो प्यासा है, मैं उसके हौजे कौसर पिला दूंगा ताकि उसके प्यास बुझ जाए। मैं अपनी गुनहगार उम्मतियों को, मैं अपने इधर देखिए, मैं अपने गुनहगार उम्मतियों को हौजे कौसर का पानी पिला दूंगा ताकि उसकी प्यास बुझ जाए। इधर देखिए हौजे कौसर क्या है, एक पानी का नहर है, एक पानी का नहर है। कैसा नहर है, दूध से भी ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, बड़े मजेदार जायकेदार पानी है और वो पानी पीने के बाद जहन्नम की आग भी उसकी प्यास नहीं लगा सकती, उसे प्यास लग ही नहीं सकती। एक बार अगर कोई पानी पी ले हौजे कौसर का तो उसे और दोबारा प्यास नहीं लगेगी। मेरे आका मुस्तफा फरमा रहे हैं यही हौजे कौसर का पानी मैं लेऊंगा और मैं अपनी गुनहगार उम्मतियों को पिलाता रहूंगा, क्योंकि वो 25,000 वर्ष तक वो इस क़यामत के मैदान में भागते रहेंगे और भागते भागते प्यासे हो जाएंगे। तो मैं आका, मैं अपने गुलामों को हौजे कौसर पिलाता रहूंगा। मेरे आका, अब ये हौजे कौसर पैदा कहां से हुआ। अरे इतना पानी, अच्छा पानी जो प्यास बुझ जाती है, जिंदगी में कभी प्यास नहीं लगेगी, मरने के बाद भी प्यास नहीं लगेगी। अगर वो चुपके से हौजे कौसर का पानी पी लिया हो और उसे अगर जहन्नम में फेंक दिया हो तो उस जहन्नम में खुदा की कसम हौजे कौसर का ये बूंद अगर किसी के हलक से उतर गया तो जहन्नम में जाकर भी उसे प्यास नहीं लगेगी। अब ये हौजे कौसर का पानी कहां से पैदा हुआ। देखिए आज हम परेशान हैं, आज हम मुसीबत में हैं, आज दवा दारू हम कर रहे हैं, कहीं कहीं भागम भागा फिर रहे हैं, लेकिन शिफा तो हमारे घर में ही है, लेकिन मर्ज का दवा तो हमारे घर में ही है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसको कैद करके रख दिए हैं। हम मजलूम है, हम जुल्म कर रहे हैं। कैसे जुल्म कर रहे हैं, ये कुरान की आयत, कुरान शरीफ को हम समझ रहे हैं, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपने मकान में ऊंची जगह पर रख देते हैं, लपेट के रख देते हैं। हम उसको पढ़ते नहीं, उसको देखते नहीं, उसमें हाई क्या। अगर तुम्हारी पेट खराब है उसकी दवा कुरान में है, अगर तुम्हारे दिल का मर्ज है तो उसकी दवा कुरान में है, अगर तुम्हारे सिर दर्द है तो उसकी दवा कुरान में है, अगर तुम्हें घर में कोई परेशानी है उसकी दवा कुरान में है, अगर तुम्हें घर में कोई मुसीबत है उसकी दवा कुरान में है, अगर तुम्हें करुणा है उसकी दवा कुरान में है। और कुछ भी हो जाए, दुनिया की हर मुसीबत का हल ही कुरान है और उसी कुरान को तुमने जबरदस्ती लपेट के मकान के ऊपर ऊंची जगह पर कैद कर दिया है। यही तुम्हारी गलती है, यही तुम्हारी गलती है। आओ दोस्तों तवज्जो चाहूंगा, इधर देखिए हौजे कौसर का पानी कहां से बना, जो एक बार पीने से जहन्नुम की आग भी उसके प्यास, जहन्नुम की आग भी उसे प्यासा नहीं बना सकती। वो हौजे कौसर का पानी बना कहां से, कैसे बना। आप कुरान की उस आयत में जाओ, 15वें पारे में जाओ, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। है वो जात जिसने अपने बंदों को ले गए रातों रात मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद
साथ साथ। ये मेराज की रात है दोस्तों, इधर देखिए, तवज्जो चाहूंगा। मेराज की रात थी जब मेरे मुस्तफा जिब्रील को लेकर जब सैर को गए। लोग कहते हैं कि जिब्रील मेरे मुस्तफा को सैर कराने ले गए। अरे ये गलत है, क्योंकि मेरे मुस्तफा को जिब्रील ने सैर नहीं कराया, बल्कि मेरे मुस्तफा ने जिब्रील को सैर कराया। आइए जिब्रील के मुंह से सुनिए। जब जिब्रील ने कहा आका मैं कभी जन्नत नहीं देखा, आका मैं कभी जहन्नुम नहीं देखा। बोले क्यों? बोले मैं अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह का ताब में, अल्लाह के हुक्म में मैं हर वक्त बिजी रहता हूँ, हर वक्त व्यस्त रहता हूँ। आका आपके साथ अगर मैं चलता रहूं तो मेरा भी नसीब हो जाएगा जन्नत देखना, मेरा भी नसीब हो जाएगा जहन्नुम देखना, मेरा भी नसीब हो जाएगा आपके साथ घूमना। या रसूल अल्लाह चलिए, अल्लाह ने आपको बुलाया। बुराक में सवार होकर मेरे मुस्तफा चल दिए, जन्नत देखा। और जन्नत देखने के बाद जिब्रील ने भी कहा आका मैं जन्नत देखा आपके नसीब, आपके वजह से, आपके सदके। जहन्नुम देखा आपके सदके, अर्श देखा आपके सदके। या रसूल अल्लाह जहां जो चीज देखा वो आपके सदके में देखा, इससे पहले मैं नहीं देखा था। अब जिब्रील पहुंच गए, कहां पहुंचे? हौज़े कौसर में। बोले मेरे मुस्तफा फरमाए जिब्रील ये तो बता ये क्या है? बोले ये हौज़े कौसर है। बोले आका हौज़े कौसर है। बोले क्या होता है इससे? बोले आका ये एक बार पीने के बाद दोबारा प्यास नहीं लगती। बोले क्या खासियत है इस पानी में? बोले ये तो दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है। बोले इसका मालिक कौन है? जिब्रील ने कहा आका आप मालिक हैं। बोले कौन पिएगा? बोले आप। आका आप जिसे चाहेंगे आप उसे पिलाएंगे। बोले ठीक है। अब जिब्रील आगे बढ़ते हैं, बोले कि आका ये जन्नत है। बोले किसके लिए है? बोले आका ये मालिक आप है, आप जिसे चाहेंगे जन्नत में दाखिल करवा सकते हैं। आगे बढ़े, बोले ये क्या है? बोले ये जहन्नुम है। बोले आका ये जहन्नुम में कौन जाएगा? बोले आका बोले कि जिसको जिब्रील बोले कि आका जिसका हाथ आप छोड़ देंगे वो जहन्नुम में पहुंच जाएगा, जिसका हाथ आप पकड़ लेंगे वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। देखिए अब हौज़े कौसर। बोले जिब्रील जरा इसके बारे में मुझे समझाओ। जिब्रील बोले आका क्या समझाऊं? बोले ये हौज़े कौसर का मालिक मुझे बना दिया, इसकी खूबी मैं नहीं जानता, इसकी ताबीर मैं नहीं जानता, आखिर मालिक बनने से फायदा क्या? बोले आका ये कैसी बात है हो रही है? बोले कि सुन जिब्रील ये हौज़े कौसर बना कहाँ से आ रहा है, और इस पानी की ये तासीर है कि ये एक बार पीने के बाद दोबारा प्यास नहीं लगती। आखिर ये पानी बनाया किसने है और किस चीज से बना है ये मुझे सब जानना है। बोले आका अल्लाह ने ये हौज़े कौसर आपके उम्मती के लिए बनाया है ताकि आपके गुनहगार उम्मती को आप पिला सके, और इसका मालिक आपको बना दिया। बोले जिब्रील मुझे देखना है ये हौज़े कौसर शुरुआत कहाँ से है, कहाँ से इसका पानी निकल रहा है? आखिर इतना जायकादार पानी, इतनी कीमती पानी जिससे एक बार पीने से जहन्नुम की आग भी प्यासा नहीं बना सकती, ये पानी कहाँ से निकल रहा है? मुंडे को देखना है। बोले आका इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मैं जिब्रील हूँ, आपका खादिम हूँ, लेकिन मैं मालिक नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है। अगर पता करना है तो मालिक से पूछ लो। बोले कौन मालिक? बोले रब्बे जुल जलाल। अल्लाह के रसूल पैगंबर ने रब्बे जुल जलाल से फरमाया ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक, मुझे को देखना है ये हौज़े कौसर बना कहाँ से है, कि कहाँ से इसकी शुरुआत है, मुझे इसकी शुरुआत में जाना है, किस चीज से तूने इसको बनाया है, मुझे वो देखना है। जब मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया जब तुझे ये हौज़े कौसर का पानी देखना है, ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ मेरे महबूब, इस हौज़े कौसर के किनारे किनारे पैदल आगे बढ़ते रहो, जहां उसकी शुरुआत होगी वहां तक पहुंच जाओगे। अब देखिए आका ने जिब्रील से फरमाया ऐ जिब्रील चलो हौज़े कौसर के किनारे किनारे चलते। ये हौज़े कौसर बना कहां से है, शुरुआत कहां से है? अब मेरे आका चलते चलते बहुत दूर जाने के बाद पहुंच ही गए आखिर मंजिल तक पहुंचने के बाद आका ने देखा एक बक्सा है और उस बक्से के अंदर से हौज़े कौसर का पानी निकल के आ रहा है। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। आका देख रहे हैं, इधर देखिए हौज़े कौसर का पानी जो एक बूंद पीने से जहन्नुम की आग भी आपको प्यासा नहीं बना सकती, वो पानी उस बक्से के अंदर से आ रही है। बोले कि जिब्रील ये बक्सा खुलेगा कैसे, इस बक्से के अंदर क्या है जहां से ये हौज़े कौसर का पानी निकल रहा है? बोले हुजूर ये बक्सा तो देखना मुझे नसीब हुआ सिर्फ आपकी वजह से है, अब आप ही इसके तदबीर देखिए, आप ही अपने मालिक से पूछिए, रब से पूछिए
पूछिए कि ये बक्सा खुलेगा कहां से, मैंने अभी तक नहीं देखा था, आज मैंने ये बक्सा आपके सदके देख लिया, आपके सदके देख लिया ये बक्सा। बोले कि जिब्रील घुमाने आए हो या घूमने आए हो? बोले आका गुलाम हूं, बॉडीगार्ड हूं, घूमने आया हूं, घुमाने नहीं आया। बोले अव्वलु मा खलक अल्लाहु मिन नूर, सबसे पहले अल्लाह ने आपके नूर को बनाया, आप सबसे पहले हो, हम पहले नहीं है। अब देखिए आगे बढ़िए, इधर देखिए, तवज्जो कीजिए। अब वो हौज़े कौसर का पानी जो बक्से से निकल रहा है, आका ने फरमाया ये बक्सा खुले तो खुले कैसे? रब से फरमाया ऐ मेरे रब्बुल जलाल, ऐ मेरे परवरदिगार, अब ये तो बताइए बक्सा खुलेगा कैसे? बक्से के अंदर है क्या चीज जहां से ये पानी निकल रहा है? अब मेरे परवरदिगार फरमा रहा है, अभी मुस्तफा सुन ले, वो बक्सा अगर खोलना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के ठोकर मार, वो बक्सा खुल जाएगा। मेरे प्यारे मुस्तफा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, बक्से को ठोकर मारा, और जैसे ही बक्से को ठोकर मारा वैसे ही बक्सा खुल गया। देखकर ताज्जुब हो गया कि बक्से के अंदर क्या है, ये क्या है जिब्रील? ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, और इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मीम के दूम से ये हौज़े कौसर का पानी निकल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिर के मीम जो है, उस मीम के दूम से यह हौज़े कौसर का पानी निकल रहा है। इधर देखिए, अब आपके पास वो तो बक्से के अंदर एक आयत थी, सिर्फ एक आयत बक्से के अंदर, जहां से मीम एक आयत के एक अक्षर से वो हौज़े कौसर का पानी निकलकर इतना शादाब कर रहा है कि जिंदगी में जहन एक बार पी ले तो जहन्नम का आग भी आपको प्यासा नहीं बना सकती। तो आपके पास तो 6666 आयत है, कुरान पूरा कलाम पाक है, तो फिर आपको हौज़े कौसर क्यों नहीं मिल रहा है? वहां तो एक आयत से निकल रहा है कि जहन्नम के आग के प्यास से बचने के लिए मीम, सिर्फ मीम से तुम्हारे वो हौज़े कौसर का पानी निकल रहा है। तो तुमने कितना बड़ा जुल्म किया, कितना बड़ा अत्याचार किया इस कुरान के ऊपर, जो तुमने उसको लपेट के मकान के ऊपर रख दिया, सजा के रख दिया, ये तुमने कैद कर दिया उसको, उसके तुमने शिफा में काम नहीं लाया। तो देखिए, अब आप और हम सब मिलकर इत्तिबाए रसूल पढ़ेंगे, सुन्नत का पाबंद बनेंगे और रसूल की इत्तिबा करेंगे, रसूल से मोहब्बत करेंगे, तभी जाके हम कामयाब और कामरान हो जाएंगे। हजरत अल्लामा बैठे हुए हैं, अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से इख्तिताम कर रहा हूँ। अगर बोलने में खता लफ्जन गलती हुई हो तो माफी। कि खूब की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, खूब की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, भाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। आइए आखिरी में एक और शेर कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसा।